So team, after is a factory calendar. We cannot say factory calendar is a master data, but next master data after that is work center. Before going for work center, this factory calendar is one of the important configuration which we should know. Okay, so this is not a master data, it is a configuration. Okay, and now we will understand what is this factory calendar, what is its configuration, why it is required. Okay, and then tomorrow we will go for the next master data, that is the work center. So this is very important to learn and understand what is a factory calendar from SAP PP consultant perspective. So let us start it today. We will try to understand what is factory calendar, importance of factory calendar, creation of factory calendar, then creation of public holiday, and then assign public holiday to holiday calendar, and then finally create a factory calendar. These are the different steps we are going to learn today. So I want to know what is your understanding by reading this word factory calendar. What things click in your mind? Okay, first of all, what is your understanding on factory calendar word? Any wild guess? Any guess? It is like a schedule of manufacturing. Schedule of manufacturing. Good. Okay. What else? Rajendra, Rishi, Vaijunath. You're right. It's schedule. What else? Calendar, guys. Calendar, factory calendar. See, at the start of your year in your company, do you get the list of holidays from your HR? Yes. Okay. They are saying you, boss, in these many days, this 12 or 13 days in whole year, you will having the leave or you are having holiday in your company. Okay. So did you get this kind of email or notice on your notice board on shop floor? Yes or no? Yes. So why this is required? Why they give this information? Why HR is giving one well in advance information to you? What could be the reason? Accordingly, we can plan our work, our deliveries. Good. You can plan. Important is your planning is depend upon your holidays, right? Planning, scheduling, like Planning, scheduling. Yes. Your dispatches. procurement. Perfect. So guys, try to understand. You are trying to touching all the points. Okay. You are not saying only my planning means only production activity. You are saying procurement also depend upon that. How procurement is depend? Can somebody help me? How procurement is leading with your holidays? Chalo, I will give example. On 1st May, there is a holiday, right? Yes. But you forget to update in your factory, in your company calendar, and you forget same to update to your vendor. ठीक है, आपने अपने वेंडर को नहीं बताया 1 तारीख को छुट्टी है और आपने पीओ क्रिएट कर दिया, वेंडर को पीओ जा चुके हो और वेंडर बोल रहा है मैं 1 तारीख को मटेरियल भेज दूंगा. आपने बोला हाँ ठीक है आ जाएगा, 1 तारीख को मटेरियल आ जाएगा. सब लोग अपने अपने इसमें है. Nobody thought that 1st May is a holiday, and on 31st when you are home you understand, oh tomorrow is holiday. It's okay, you got some message, people start talking on 31st, अरे कल तो छुट्टी है, something like that. Okay, and you also forget. But vendor, he dispatches material, loaded the material on the his cargo or truck or something, and send that truck from his location. Now truck is received at your company material gate or your company entrance gate, and security is not ready to open the gate, right? Why? Because nobody inside there to receive your material. चलान करने के लिए कोई बंदा नहीं है, मटेरियल डॉकिंग स्टेशन पे कोई नहीं है, ना कोई आएगा इनवॉइस वेरिफिकेशन करेगा. नोबडी इज देयर. सो ही सिंपली से बॉस आई कैन नॉट टेक इट. तो ट्रक वाला बंदा किसको फोन लगेगा? वेंडर के बंदे को जिसने मटेरियल भेजा है. बोलेगा साहब यहाँ पे कोई मटेरियल उतारने को नहीं है, कोई मुझे अंदर जाने नहीं दे रहा, मैं क्या करूँ? ठीक है, फिर वो बंदा आपको फोन करेगा. अभी मेल तो डाल के फायदा नहीं, उसको दिख रहा है कि कंपनी में छुट्टी है, तो आपको पर्सनल कॉल करेगा, बोलेगा सर आपने तो बोला मटेरियल भेज दो, मैंने मटेरियल भेज दिया, व्हाई यू आर नॉट टेकिंग इट? तो आप बोले अरे यार मैं भूल गया आपको बताना कि कल छुट्टी था, आज छुट्टी है करके. राइट? हो सकता है कि नहीं? दिस इज अ रियलिस्टिक सिनेरियो. होता है कि नहीं ऐसा? Yes. ठीक है. तो प्रोक्यूरमेंट जो है आपका, अगर ये नहीं है तो इसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है. अभी प्रॉब्लम क्या होगा? इतना ही छोटा प्रॉब्लम नहीं है. अभी वो ट्रक वाला बंदा दिन भर वहां पे खड़ा रहेगा, आप उसको क्या बोलोगे? अभी वो आया मान लो गुजरात से यहाँ पे रिच हुआ है, तो आप उसको बोलते हैं भैया वापस से गुजरात जाओ. आप क्या बोले? भैया आज के दिन रुक जाओ यहाँ पे, अदरवाइज इफ पॉसिबल यू विल टेक परमिशन एंड गो इनसाइड द ऑफिस एंड गेट द मटेरियल लोडेड. पर मटेरियल उतारने के लिए आपके वर्कर चाहिए, असिस्टेंट चाहिए, सब चाहिए, नहीं है कोई आपको, तो आप बोलेगे भैया आज के दिन रुक जाओ, कल जाएंगे. तो फिर वेंडर क्या बोलेगा? सर इसका भाड़ा कौन देगा 1 दिन का ट्रक का? Detention charges. Right? So this is the problem.
So these are the issue will be created if there is no proper planning with the proper holiday implementation. ये पहली चीज होगी. और क्या चीज हो सकती है? ये तो होगा मेरा इसके परस्पेक्टिव, प्रोक्यूरमेंट के परस्पेक्टिव. प्लानिंग के हिसाब से क्या होगा? What will go wrong? ऋषि, if you are not aware in this month, अगर आपने मंथ का प्लानिंग कर रहे हैं मई मंथ का, ठीक है, और आपको मालूम ही नहीं कि आपके पास 31 मतलब 25 वर्किंग डे नहीं है, आपके पास सिर्फ 24 वर्किंग डेज है, व्हाट मे गो रॉन्ग? डिस्पैचेस हमारे डिले हो जाएंगे. डिलीवरी का डेट मिस हो सकता है. गुड. आपको मालूम ही नहीं कि 1 तारीख को हम 20 तारीख को छुट्टी है, सपोज 20 मई को हॉलीडे, यू हैवंट कंसीडर दैट, और आपने कस्टमर को बोल दिया कि हाँ 20 तारीख को मैं मेटल भेज रहा हूँ, ठीक है, बट विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज आपको 20 तारीख को छुट्टी है, 20 तारीख को वर्किंग नहीं हो रहा. और क्या गलत हो सकता है? योर डिलीवरी विल मे गेट मिस और गेट मिसमैच. ओके, Production quantity will be less. यस, यू आर राइट. गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड. टारगेट अचीव नहीं हो पाएंगे. टारगेट अचीव नहीं होगा क्योंकि आपने एक दिन ध्यान में रखा ही नहीं, आपने उसको पकड़ के चला है. आप बोल रहे मेरा हर दिन का 100 प्रोडक्ट बनता है, 25 दिन में 2500 बनाऊंगा मैं, बट यू हैव फॉरगेट दैट there is one day holiday, you are having only 24 days, so you are going to manufacture 2400 components only. Okay, तो आपका प्रोडक्शन में मिसमैच हो सकता है, प्रोक्योरमेंट मिसमैच हो सकता है, जैसे आपने बोला डिस्पैच में मिसमैच हो सकता है. और क्या गलत हो सकता है? वैजनाथ, आपके कंपनी के अंदर कल छुट्टी है और फिर भी आपने लोगों को काम पे बुलाया है, और तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? पीपल आर इनसाइड द ऑफिस, तो वो लोग क्या मांगेंगे? एक्स्ट्रा काम पे आएंगे तो ओवर टाइम, राइट? Yes. पीपल विल आस्क फॉर ओवर टाइम. अगर एचआर को मालूम ही नहीं कि आज हॉलीडे है और उसने आपका रेगुलर पेमेंट की तरह पेमेंट निकाल दिया, एचआर के बंदों ने, उनके दिमाग में नहीं रहा कि यार 20 तारीख को छुट्टी था 20 मई को, एंड पीपल कम एंड दे वर्क ऑन दैट, सो वी हैव टू गिव देम एक्स्ट्रा. या फिर कल 1 मई को छुट्टी है, ठीक है, लेबर डे, उस दिन के लोगों को काम पे बुलाया, इमरजेंसी वर्क पे, विच इज नॉट अलाउड एज पर द रूल्स, बट फिर भी लोग आ गए, ठीक है, तो क्या करेंगे? उनको दुगना या तिगुना पेमेंट देना पड़ता है, राइट? अरे अवेयर, आपके बेसिक Yes. ट्रिपल सैलरी या Yes. 4 टाइम सैलरी दिए थे, तब लोग जाके आते. अगर वो ही भूल गए तो कैलकुलेशन गड़बड़ जाएगा उनका, एचआर में सैलरी कम आ जाएंगी, फिर लोग गुस्सा हो जाएंगे, यार हमको ओटी पे बुलाया था, हमें एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं मिला. समझ रहे हो? तो एचआर डिपार्टमेंट ऑल्सो गोइंग टू बी ऑन टॉस, राइट? अब एक तीसरा डिपार्टमेंट होता है मेंटेनेंस का डिपार्टमेंट. मेंटेनेंस के लोग कब मेंटेनेंस करते हैं? हॉलीडे पे. या फिर वीकेंड पे करते हैं, या फिर हॉलीडेज पे करते हैं. उनको मालूम है ये मशीन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के लिए लेना है, खोलना है, मशीन के अंदर का साफ सफाई करना है, ओवरहॉलिंग करना है, तो वो क्या करते हैं? स्पेसिफिकली ऐसा डे चुनते हैं जिस दिन हॉलीडे, राइट? अगर फ्राइडे को हॉलीडे रहा और सैटरडे संडे आपकी कंपनी छुट्टी रहती है, तो बहुत बड़ा प्लानिंग करते हैं. एम आई राइट? दे प्लान फॉर नेक्स्ट 3 days कंटिन्यूसली. यहाँ 3 दिन कंटिन्यूस प्लान शटडाउन है अपना, मस्त में 10-15 मशीन का जो भी अपना बड़ा बड़ा काम पेंडिंग है उसका सब स्पेयर ला के रखो, और फ्राइडे नाइट कोई मशीन ले लो हाथ में और शुरू हो जाओ. मंडे मॉर्निंग तो हमें मशीन डिलीवर करना है. होता है कि नहीं मेंटेनेंस का प्लानिंग ऐसे? Yes. Yes. So now you understand your holiday is causing, it can impact all the functions, right? Production, quality, procurement, Yes, right. dispatch, maintenance. So Logistics. obviously supply chain, everything is going to be on toss if you are not having proper holiday updated in your company or calendar, or in a company nobody is aware about what is a holiday. तो आपको समझ में आया हॉलीडे का इंपॉर्टेंस क्या है, क्या क्या गलत हो सकता है. So let us understand what is this calendar, how this company is going to create a factory calendar. Okay, how we are going to create this factory calendar. Now concept is clear. Do you understand what we are going to learn today? How to create a calendar. हमारे घर में जो कैलेंडर है वैसा कंपनी के अंदर भी आपका कैलेंडर है. हमारे घर में तो हर महीने में 2 दिन लाल रंग की छुट्टियां होती है. आपकी कंपनी में वैसा नहीं होता. वी हैव वेरी पिक्युलर हॉलीडेज, राइट? ठीक है, कुछ छुट्टियां हमारे कंपनी कैलेंडर में होती है लेकिन हमारे घर में नहीं होती. जैसे कि मान लो कंपनी का फाउंडेशन डे, आपकी कंपनी मान लो 20 मई को आपकी कंपनी का फर्स्ट स्टोर रखा था, ओके, द फाउंडेशन वाज लाई ऑन दैट डे, तो हर साल उस दिन आपको सबको छुट्टी रहती है. बाकी के दुनियादारी को उसको मालूम नहीं 20 मई को क्या है, क्या सब इधर रेगुलर डे, ठीक है, बट आपके कंपनी के लिए वो फाउंडेशन डे, तो उस दिन आपको एक छुट्टी रहती है. गेटिंग माय पॉइंट? तो ये अलग हो सकता है. ओके, दिस कैन बी डिफरेंट फ्रॉम योर घर के अंदर जो कैलेंडर उसके हिसाब से. समझ में आ रहा है? नाउ यू आर गेटिंग क्लियर व्हाट इज अ फैक्ट्री कैलेंडर एंड व्हाट इज घर में जो आपका डोमेस्टिक घर का जो कैलेंडर है जो पूरी दुनिया यूज करती है वो अलग है. ठीक है? Yes. Yes. Let us understand now what is the overview of factory calendar. Now one more question I want to know. Now we will talk something more interesting. Okay,
Tell me, guys, is anybody in the call who is having two plant? Okay, one is Pune, one is in other location, or there my plant is in one plant is here, one plant is there. आपके कंपनी में ऐसा कोई है? आपके किसी का कंपनी है? स्वप्निल, राजेंद्र, वैजनाथ. We have two different Yes. plant. Yeah. Yes. We have. ऋषि आपका है. चलो तो ऋषि मुझे बताओ आपका एक प्लांट कहाँ पर है? लोकेशन बताओ सिर्फ. आई डोंट वांट टू नो डिटेल्स. ओके, जस्ट कि एक भैया मुंबई में और एक हमारा चेन्नई में, ऐसा है कुछ? व्हाट इज द नेम? ये दिल्ली में है और एक दिल्ली में और एक हरियाणा में. हरियाणा में. ओके, सो दिल्ली एंड हरियाणा बोथ आर डिफरेंट स्टेट्स. ओके, नाउ टेल मी ऋषि, ऐसा होता है क्या कि आपका दिल्ली वाला कंपनी आज बंद है और आपका हरियाणा वाला कंपनी उस दिन चल रहा है प्लांट? ऐसा होता है? इज देयर सिनेरियो? कभी कभी होता है. होता है ना, राइट? ओके, अभी मुझे बताओ आपका दिल्ली का जो प्लांट है उसका वीकली हॉलीडे कब होता है? सैटरडे संडे होता है या फिर संडे होता है या फिर कोई अलग डे है? वीक ऑफ, वीकली ऑफ कब दिल्ली होता वाले दिल्ली वाले प्लांट में सैटरडे संडे है. है? ओके, दिल्ली सैटरडे संडे ऑफ एंड हरियाणा फ्राइडे. Friday. Okay, guys. Now see, एक ही कंपनी है. Now try to understand. One company having two different plants but having two different holidays. Very simple example. समझ में आ रहा है आपको कि हरियाणा का जो प्लांट है वो फ्राइडे को उनको ऑफ रहता है, फिर सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे अगेन फ्राइडे उनका ऑफ रहता है. तो इनका साइकिल कहाँ से शुरू होता है? फर्स्ट डे ऑफ वीक इज सैटरडे. बट सैटरडे जो दिल्ली वाला है उनका मंडे इज द फर्स्ट डे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे संडे वापस छुट्टी. तो 2 दिन का उनको हॉलीडे. तो उनका फैक्ट्री कैलेंडर आ रहेगा. हरियाणा का प्लांट का मैन्युफैक्चरिंग का टाइम ज्यादा है और दिल्ली का कम है. समझ में आ रहा है? एक चीज समझ में आ गई? ठीक है. और एक क्वेश्चन ऋषि, ऐसा होता है क्या कुछ सम स्पेसिफिक फेस्टिवल होते हैं जहाँ पे हरियाणा को छुट्टी रहती है, रीजनल फेस्टिवल पे है. दिल्ली काम करता है? यस यस होता है? होता है. एवरीबडी एग्रीज? राजेंद्र, वैजनाथ, स्वप्निल, आर यू एग्री विथ? आपने देखा है ऐसा? Yes. राइट? दूर जाते. चलो एक एग्जांपल देते हैं. वन ऑफ माय प्लांट इज इन चेन्नई एंड वन ऑफ माय प्लांट इज पुणे. सो चेन्नई का जो प्लांट है दे आर हैविंग हॉलीडे ऑन पोंगल. उनको पोंगल को छुट्टी रहती है, लेकिन यहाँ पे पुणे में नहीं होती. अभी पुणे में जो लोग हैं वो गणपति फेस्टिवल के लिए बहुत बड़ा छुट्टी लेते हैं हम लोग. ठीक है, लेकिन इन साउथ इंडिया देयर इज नो सच अ बिग फेस्टिवल. बट यही मेरा कोलकाता में अगर प्लांट है या फिर मेरा गुजरात में प्लांट है तो दिस पीपल प्रेफर टू हैव अ लीव ऑन नवरात्रि. नवरात्रि में उनको 2-2 3 दिन का छुट्टी रहती है. लेकिन यहाँ पे महाराष्ट्र में नवरात्रि इतना नहीं रहता. नवरात्रि का एक दिन या फिर दशहरे का एक दिन वो दिन छुट्टी रहेगी, लेकिन उनका छुट्टी ज्यादा रहेगा. पीपल विल बाउंड टू टेक अ लीव मोर इन दैट डे. अगर मुंबई के लोग देखोगे तो गणपति में आधा मुंबई खाली हो जाता है. लोग अपने अपने गाँव चले जाते हैं मोस्टली. जो महाराष्ट्र के लोग दे लीव फॉर होम एंड कंपनी में बहुत सारे लोगों को प्रोडक्शन कम रहता है. उसको मालूम है लोग जाने वाले, छुट्टी देना ही पड़ेगा. सो दिस इज द टाइम व्हेन द पीपल विल नॉट अवेलेबल. So do you understand? Because of your regional planning, you are having different factory calendar. अभी एक ही फैक्ट्री इज इक्वल टू प्लांट. अभी समझ लो फैक्ट्री इज इक्वल टू प्लांट. तो हम प्लांट के कैलेंडर की बात कर रहे हैं. तो जैसे ऋषि ने बताया उनके दिल्ली का प्लांट अलग है, दिल्ली का कैलेंडर अलग रहेगा और हरियाणा का फैक्ट्री उसका कैलेंडर अलग रहेगा. एग्रीड है सब लोग? वैजनाथ, राजेंद्र, स्वप्निल? Yes. समझ में आ गया आपको? अभी हम क्या सीखने वाले अभी समझ में आ रहा है आपको? सो इट इज गोइंग टू बी अ plant specific thing. ठीक है, so let us go and start the actual work. Okay, so overview of factory calendar. A factory calendar is a calendar that is country specific. तो फर्स्ट आओ, अगर आपका एक प्लांट है एक कंट्री के अंदर है तो वो कंट्री के स्पेसिफिक चलेगा. अभी कंट्री स्पेसिफिक मतलब क्या? व्हाट इज कंट्री स्पेसिफिक? चलो अभी एग्जांपल लेते हैं हम गल्फ कंट्रीज का. तो गल्फ कंट्रीज में क्या होता है? दे आर हैविंग फ्राइडे एंड सैटरडे. बराबर है? आपने देखा होगा आपके गल्फ के कोई फ्रेंड हो गए जो गल्फ में काम करते हैं, बोलते हैं यार फ्राइडे सैटरडे ऑफ रहता है, संडे और फर्स्ट डे. संडे को हमारा छुट्टी नहीं था. संडे को डे 1 रहता है. संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, फ्राइडे सैटरडे छुट्टी रहेगा. ठीक है, इंडिया में क्या है और यूरोप में जाओगे तो सैटरडे संडे ऑफ रहता है मोस्ट ऑफ द. सो दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग. इट इज अ कंट्री स्पेसिफिक फर्स्ट ऑफ ऑल. ओके, द लिस्ट ऑफ पब्लिक हॉलीडेज मेंटेन वाया हॉलीडे कैलेंडर एंड वर्किंग डेज. तो आपका जो हॉलीडे कैलेंडर है वो इसके हिसाब से चले. मैंने अपने वीकडेज का बात किया. अभी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम? पब्लिक हॉलीडे. पब्लिक हॉलीडे मतलब क्या? हमारे इंडिया में 26 जनवरी को और 15 अगस्त को छुट्टी होती है. फर्स्ट में लेबर डे छुट्टी होगी रहेगी चाहे कुछ भी हो, कौन सा भी साल हो. राइट, दिस इज अवर नेशनल हॉलीडेज. वी हैव हॉलीडेज ऑन दिस. बट अमेरिका में जाओगे तो 26-15 अगस्त और उनका कोई लेना देना नहीं उनको. ठीक है, बिकॉज दे डोंट हैव दिस फेस्टिवल्स. ओके,
गेटिंग माई पॉइंट? तो उनका कंट्री स्पेसिफिक हॉलीडेज अलग है, हमारा कंट्री स्पेसिफिक हॉलीडे अलग है। गेटिंग माई पॉइंट? Yes. ठीक है। द फैक्ट्री कैलेंडर हेल्प्स इन कंट्रोलिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी प्लानिंग, जैसे हमने बात किया, द प्रोडक्शन ऑर्डर स्टार्ट एंड क्लोज डेट डिपेंड्स अपॉन एंड गुड रिसिप्ट एंड गुड्स इशू ऑल डिपेंड्स अपॉन योर प्रोडक्शन अवेलेबिलिटी और योर फैक्ट्री कैलेंडर। आपके फैक्ट्री कैलेंडर के हिसाब से वो चलेगा। ईच प्लांट इज असाइन फैक्ट्री कैलेंडर, हर एक प्लांट को अपना अपना खुद का एक फैक्ट्री कैलेंडर रहेगा एंड कैलेंडर मस्ट बी एक्टिवेटेड थ्रू आउट द CTS फंक्शनलिटी। ओके, दे विल सी दिस। ओके, फैक्ट्री कैलेंडर डिफाइन अंडर ट्रेनिंग इवेंट्स मैनेजमेंट। तो HR के लोग भी इसको यूज करते हैं, कब ट्रेनिंग रखनी है, कब प्रोडक्शन कम रहेगा, कब छुट्टी है, कब ओवर टाइम देना है, सब क्या कैलकुलेशन है, फाइनेंस के लोग वो करेंगे। बट इट इज यूज फॉर प्लांट मेंटेनेंस एंड MRP। ठीक है, MRP यानी लॉजिस्टिक, आपका मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। प्लांट मेंटेनेंस के लोग भी आपका फैक्ट्री कैलेंडर करेंगे। तो मोस्ट ऑफ द कंपनी यू विल से व्हेन यू गो फॉर एनी implementation project or for supporting any client, you might see that factory calendar creation activity is done by either PP person, PP consultant, or HR consultant, human resource consultant, or sometime plant maintenance consultant। ये तीनों कंसल्टेंट है वो इस कैलेंडर का कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? PP, then HR, human and resource, sorry, HR is not human resource, HR is hire to retire। Okay, HR is hire to retire cycle। Okay, and PM it stands for plant maintenance। Okay, so ये तीन functional consultant है, only these people will going to configure this factory calendar। Are we clear? Shall we go to the next? Yes. Yes, okay, चलो। Now let us understand what is the master of factory calendar। So factory calendar में हमें तीन चीज देखने मिलेगी, public holiday, holiday calendar and factory calendar। So let us understand this। Let me do login and we will go ahead। यहाँ तक clear सबको? Are we clear up till now? Yes. 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 Okay, now SCAL, this is the T code। This is your interview question. What is the factory calendar? How you can configure the factory calendar? Are you aware about factory calendar? So you should know what is the factory calendar first of all. Its impacts, everything we discussed theoretically. Now T code is SCAL. Okay, this is your configurational T code, not a master data, not your transaction. This is a configurational T code. Okay, just press enter button. Now, as I told, there are three types of, or we can say these are the master of factory calendar. We have to create three things: public holiday, holiday calendar, and factory calendar. Public holidays, holiday calendar, and factory calendar. So let us go with the first public holiday. So go to the your edit button or change button. Okay, click on change button. Now here we have to create a public holiday. So we will go for create button. Okay, public holiday मतलब क्या होता है? What are the public holiday in India we are having? जैसे फर्स्ट में जाओ पब्लिक हॉलिडे, और क्या हो सकते हैं? 15 Republic, August। 15 अगस्त है, दिवाली है, होली है, दशहरा है, Yes. राइट, गणपति। गणपति उत्सव है। सो ऑल दीज आर योर पब्लिक हॉलिडे। ठीक है, पब्लिक हॉलिडे बोल देना, अरे कल पब्लिक हॉलिडे। तो ये पब्लिक हॉलिडे का ओवरऑल डेफिनेशन कि भैया जिस दिन हमें छुट्टी रहती है उसको हम पब्लिक हॉलिडे बोलते हैं। तो नाउ क्रिएट अ पब्लिक हॉलिडे। नाउ व्हेन यू आर गोइंग टू क्रिएट अ पब्लिक हॉलिडे, देयर आर टू थिंग्स वी हैव टू अंडरस्टैंड। Okay, so first of all, public holiday. So in SCL T code, we have to go and check for the public holidays can be defined as a combination into holiday calendar। Public holiday describes statutory holiday for a particular country or region within a country। एक स्पेसिफिक कंट्री के लिए हो सकता है या कंट्री के अंदर जो रीजन है उसके लिए हो सकता है। जैसे मैंने बोला कि तमिलनाडु को पोंगल है, महाराष्ट्र में दशहरा है, समथिंग लाइक दैट। ये अलग अलग है, तो उस दिन उनको छुट्टी है, इसका मतलब इनको हो गई, ऐसा नहीं, वो नहीं मनाते, यहाँ पे मनाते, समथिंग लाइक दैट। Okay, so it is depend upon country and region also। ठीक है, now let us understand types of public holiday। fixed date। so यहाँ पे देखो, अगर आप क्रिएट करने जाओगे पब्लिक हॉलिडे तो ये आपको सबसे पहला ऑप्शन आता है
with fixed date, okay, and with okay, and second is the floating public holiday. ये दो ही इंपॉर्टेंट है, बाकी का बीच में हम बाद में बात करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल विथ फिक्स्ड डेट. फिक्स्ड डेट हॉलिडे मतलब क्या है? जो हॉलिडे हर साल उसी तारीख को आएगा. फॉर एग्जांपल 26 जनवरी 26 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर गांधी जयंती, ऑल दीज आर द फिक्स हॉलिडे, राइट. अभी मैंने एग्जांपल देने के लिए बहुत बार वही डेट क्रिएट किया है, तो अभी हमें फिक्स डेट का एक एग्जांपल लेते हैं. मैं क्रिएट करता हूँ यहाँ पर, इसका नाम रखेंगे, मान लो कि 1 मई इज हॉलिडे, लेकिन हम कर देते हैं 2 मई इज आवर लेबर डे. ठीक है, हम थोड़ा चेंज कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, क्योंकि ऑलरेडी किसी ने 1 मई को किया होगा. सो डे इज वॉज, मैं कर रहा हूँ इसको फर्स्ट की जगह सेकंड कर रहा हूँ. देखो मैं आपको फर्स्ट में करके दिखाता हूँ, आपको एरर आएगा यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी क्रिएटेड है वो. ठीक है, 05 इज माई मंथ. ओके, नाउ यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये मेरा 1 मई ये है. ये क्या बोल रहे, गारंटी है इसका? ये गारंटेड नहीं है कि भैया ये थर्सडे को आएगा, फ्राइडे को आएगा. हर साल इसका डे चेंज हो सकता है. ठीक है, डे मतलब क्या, इस बार अगर 1 मई वेडनेसडे को आ रहा है तो नेक्स्ट ईयर ये संडे को भी आ सकता है, राइट. वी डोंट नो. सो ये यहाँ पर गारंटी नहीं है डेज का. ठीक है, तो इसको नॉट गारंटेड बोला. यहाँ तक क्लियर है? Yes. ओके, नाउ नेक्स्ट इज एट्रीब्यूट्स, सॉर्ट क्राइटेरिया. ठीक है, इसको कोई सॉर्टिंग क्राइटेरिया हम नहीं रखेंगे. रिलीजियस डिनोमिनेशन, ये किसी धर्म के साथ जुड़ा हुआ है क्या? आई गेस नो, राइट, बिकॉज इट्स अ लेबर डे, इट्स फॉर और लेबर. इट्स अ व्हाट इज द पब्लिक हॉलिडे क्लास. तो ये हॉलिडे का क्लास कौन सा है? ये हमारा ऑर्डिनरी पब्लिक हॉलिडे. ठीक है, नॉट अ पब्लिक हॉलिडे मतलब क्या है, फेस्टिवल है वो. ठीक है, और हॉलिडे मतलब पब्लिक हॉलिडे मतलब हाँ सब लोग, सबको छुट्टी रहती है, स्कूल कॉलेज, इट्स नॉट डिपेंड टू एनीवन, एवरीबॉडी इज हैविंग हॉलिडे ऑन दिस. ओके, अभी इसका नेम क्या रखेंगे? लेबर डे. ठीक है, उसका लॉन्ग नेम लेबर डे रखते. ठीक है, आई होप किसी ने यूज किया होगा तो एरर आएगा, नहीं किया होगा तो एरर नहीं आएगा. ठीक है, तो ये देखो, दिस इज ऑलरेडी एटलीस्ट 1 हॉलिडे विद द सेम नेम रूल. तो ऑलरेडी किसी ने तो 1 मई को क्रिएट करके रखा है. ठीक है, तो इसको कैंसिल करते हैं. तो यहाँ पे 1 मई की जगह मैं करता हूँ ये 2 मई करता हूँ. ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, लेबर डे है. ठीक है, लेबर डे B14. ठीक है, इसको ऐसा करते हैं हम. ओके, बैच 14 का हमारा लेबर डे क्रिएट कर दे. एंटर, क्रिएट किया. तो अभी क्या होता है, ये फैक्ट्री में चेंज होने वाला है, सब इम्पेक्ट करने वाला है, ट्रांसपोर्ट वगैरह. यस, वी आर एग्री, वी नो दैट, एंड वी हैव क्रिएटेड अ लेबर डे. ठीक है, लेबर डे B14 हमने यहाँ पे क्रिएट किया. सिंपल, अंडरस्टैंड हाउ टू क्रिएट पब्लिक हॉलिडे. नाउ नेक्स्ट अगेन क्रिएट, ओके, विथ फिक्स डेट. ओके, हॉलिडे अभी कौन सा करना है? फिक्स डेट नहीं करना, अभी फ्लोटिंग करना है. फ्लोटिंग का मतलब क्या है? फ्लोटिंग का मतलब ये है, इस साल अगर 1 तारीख को आया हॉलिडे, मान लो कि होली इज वन फेस्टिवल जो पिछले महीने में शायद 20 अप्रैल को आया था, 20 मार्च को आया था. नेक्स्ट ईयर वो शायद 1 अप्रैल में जा सकता है या फिर 15 मार्च को आ सकता है, वी डोंट नो. वो फ्लोटिंग होगा, चेंज होता रहेगा. एग्रीड? उसका फिक्स डेट नहीं है, उसको बोलेंगे फ्लोटिंग पब्लिक हॉलिडे. तो लेट अस क्रिएट होली एज अ, ओके, तो ये हम बोल रहे 2024 में मार्च मंथ में ये आया था 15 तारीख को. ठीक है, 2025 में ये आ सकता है शायद मार्च के 20 तारीख को. ठीक है, तो आपको जितना मालूम उतना लिख सकते हैं, अदरवाइज इतना एक लिख के आप छोड़ देंगे. इसको रिलीजियस है, हाँ ये रिलीजियस है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कौन से रिलीज के साथ है. अगर ईद आ रहा है तो हम वो ले सकते हैं कौन सा रिलीजियस है. ठीक है, उसके हिसाब से आप, अब ये हिंदू है, मैं यहाँ पे हिंदू लिखता हूँ. पब्लिक हॉलिडे क्लास, हाँ ये हमारा, इसको हम पब्लिक हॉलिडे बोलते हैं. ऑर्डिनरी पब्लिक हॉलिडे हमारा नेम इसका होली है. ठीक है, होली, और यहाँ पे लेंगे HO होली B14. मैं B14 क्यों डाल रहा हूँ? क्योंकि हमें बाद में समझ में आया रही हमारा हमने क्रिएट किया हुआ था. अभी देखो इसको इंसर्ट डेट बोलना है, तो हमें वो कैलेंडर के अंडर ये डे इंसर्ट करना है. ठीक है, एंड क्रिएट. ठीक है, तो अभी हम देखेंगे होली, तो होली B14 करके हमने एक कैलेंडर में इंसर्ट कर दिया. ठीक है, समझ में आ गया व्हाट इज द हॉलिडे कैलेंडर. तो हमने पहले क्या किया, हॉलिडे क्रिएट किया. कौन कौन से हॉलिडे, इतने दिन छुट्टी है, और इसके बाद देखो बहुत सारे ऑलरेडी क्रिएटेड है. यहाँ पे 2 अक्टूबर रहेगा, गांधी जयंती, देखो गांधी जयंती किसी ने लिख करके रखा है ऑलरेडी. ठीक है, किसी ने नीतीश का रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया, संक्रांत, ओके, देन यहाँ पे ईद अदा, ओके, बहुत सारे है ऑलरेडी क्रिएटेड है. तो बाकी के जो क्रिएटेड हम उसको यूज करेंगे. ठीक है, यहाँ तक क्लियर आपको, ये स्टेप क्लियर सबको?
पब्लिक Yes. हॉलीडेज पहले डिफाइन करो कि आपके कौन से हॉलीडे, इस महीने में 12 हॉलीडे, तो आपको 12 हॉलीडे क्रिएट करने पड़ेंगे। नाउ एज अ कंसल्टेंट यू विल गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर बिजनेस, कि आपका बिजनेस आपको बोलेगा ये फैक्ट्री कैलेंडर क्रिएट करके दो, हमारे इस दिन को छुट्टी है, वो छुट्टियों का डेटा आप लोगे एंड यू विल क्रिएट इट। यू विल आस्क दिस क्वेश्चन, ये फ्लोटिंग है या फिर फिक्स हॉलीडे, वो आपको समझता है। लेकिन आपका क्लाइंट अगर यूरोप का है तो आपको नहीं मालूम यूरोप में क्या होता है, तो आप उसको पूछेंगे बॉस दिस इज फ्लोटिंग और फिक्स, देन आपको उसको समझाना है फ्लोटिंग का मीनिंग क्या है, फिक्स का मीनिंग क्या है। ओके, क्लियर? Yes. नाउ हमने हॉलीडे तो बना लिए, अभी हमें हॉलीडे का कैलेंडर बनाना है, कैलेंडर बनाना है हॉलीडे का। ठीक है, लेट अस गो एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज हॉलीडे कैलेंडर। ओके, क्रिएट पब्लिक हॉलीडे, ये हो गया, ये हो गया। अभी हॉलीडे कैलेंडर क्रिएट करेंगे। ठीक है, अभी हॉलीडे कैलेंडर क्रिएट करने के लिए हमें क्रिएट का बटन दबाना है, यहाँ पे एडिट का, एंड यहाँ पे जाके क्रिएट करना है। इसको नाम देंगे हम B1, नहीं ये बी नहीं ले रहा अभी, ये इसको लेंगे 14 नंबर की बैच चल रही है अपनी, तो बी लिखते हैं यहाँ पे, बैच 14 फैक्ट्री कैलेंडर। ओके, टी कोड कौन सा यूज किया? सेम टी कोड के अंदर ही है हम, देखो वी आर स्टिल इन सेम टी कोड। ठीक है, ये SCLD टी कोड पहले हमने पब्लिक हॉलीडे में गए थे, राइट? हाँ अभी यहाँ पे नीचे का बटन ऑप्शन है हॉलीडे कैलेंडर। ओके ओके यस गॉट इट। अभी क्रिएट करेंगे और एक हम कैलेंडर क्रिएट करेंगे हॉलीडे का। ठीक है, इसका नाम देंगे 14, इसको लिखेंगे BATCH बैच 14 पब्लिक हॉलीडे। ठीक है, ये रहेगा हमारा 2024 से लेके 2025 तक का, या फिर एक साल का रखेंगे। ठीक है, अभी ये कर दिया, मैंने नाम दिया, तो अभी नीचे क्या आता है असाइन हॉलीडेज, तो इसको हॉलीडे असाइन करने, आईडी ऑलरेडी यूज किया है किसी ने 14, तो हम करते इसको B4 करते हैं। ठीक है, देखते यूज होता है। ओके, B4 फ्री है तो हम B4 रखेंगे B14 की जगह पे। अभी इसको क्या बोल रहे हैं, आपको हॉलीडेज असाइन करने हैं। तो हमारा हमने अभी कौन सा सबसे पहले बनाया था, हमने कौन सा बनाया था सबसे पहले 20, हमने क्या था सेकंड में right? उसको लेबर डे किया था, लेबर। ओके, तो ये सेकंड इसका लेबर डे हमने पकड़ लिया, ये लेबर डे हो गया। ठीक है, फिर हमने क्या सर्च किया था, होली। होली, तो होली में कौन सा था, 20 मार्च। एक मिनट, हमने क्या था होली B14, राइट? वो तो लॉन्ग नेम था। एक मिनट ढूंढते हैं यहाँ पे। हाँ, होली सेव नहीं हुआ खैर अपना, शायद हमने क्रिएट ही नहीं होली किया। आ गया, देखो होली यहाँ पे आ गया। ठीक है, यस मान लो हम इंडिपेंडेंस डे ले लेते हैं यहाँ से, हमारा लेबर डे B14। ठीक है, ये उठाया हमने, सिलेक्ट किया, अरे यार, एक मिनट, गांधी जयंती ले लेते हैं। ठीक है, एक गुड़ी पाड़वा लेते हैं, हॉलीडे लेते हैं, और होली ले लेते हैं, एंड इंडिपेंडेंस डे लेते हैं, और हम लेंगे लेबर डे B14। ठीक है, असाइन पब्लिक हॉलीडे। ठीक है, आ गए आपके, हमने ये जो हॉलीडे हमने क्रिएट किए थे उसको एक हॉलीडे का कैलेंडर बना रहे, सिर्फ छुट्टियों का कैलेंडर बना रहे भैया, मेन वाला कैलेंडर नहीं करे। तो इसको डालेंगे 2024, ठीक है, तो लेके 2025 तक।
ओके ओके ठीक है टीम, ये हो गया Yes. पूरा, हमने असाइन कर दिया ये सब जिसको, ठीक है। सेव, ठीक है। तो सेव पब्लिक हॉलीडे कैलेंडर, इसको फ्लोटिंग पब्लिक हॉलीडे गांधी जयंती इज नॉट डिफाइंड फॉर ईच ईयर इन, ठीक है। वो क्या बोल रहे हैं, गांधी जयंती आपको फ्लोटिंग हॉलीडे करके किसी ने क्रिएट किया, जो गलत है। इट शुड बी अ फिक्स्ड हॉलीडे, ठीक है। फिर भी हम इसको क्रिएट कर लेते हैं, चलो ठीक है। तो हमारा B4 करके हमने क्या बनाया, फैक्ट्री सॉरी पब्लिक हॉलीडे कैलेंडर, ठीक है। पहले हमने क्या किया, छुट्टियां डिफाइन की, फिर वो छुट्टियों को एक ग्रुप किया उनका, उसको नाम दिया हॉलीडे कैलेंडर, B14 पब्लिक हॉलीडे कैलेंडर, ठीक है। ओके टीम, चलो क्लियर है यहाँ तक क्लियर सबको। Yes. नाउ विल गो बैक एंड नाउ वी विल क्रिएट अ फैक्ट्री कैलेंडर, ठीक है। हॉलीडे कैलेंडर हो गया, नाउ वी आर गोइंग फॉर नेक्स्ट इज अ फैक्ट्री कैलेंडर। अभी फैक्ट्री कैलेंडर क्या है, इसको क्रिएट करने जाएंगे, इसको भी नाम देंगे हम क्रिएट, यहाँ पे B4 ही रखते हैं ताकि वो कॉमन रहेगा, B14 फैक्ट्री कैलेंडर। या फिर फैक्ट्री का मतलब गाइस प्लांट है, ध्यान में रखो, ये प्लांट स्पेसिफिक है, आपने सुना अभी पहले करते हो राइट। और यहाँ पे हमने नाम दिया ईयर डाला, अभी यहाँ पे हॉलीडे कैलेंडर आईडी क्या था हमारा, हॉलीडे कैलेंडर B4 B4. राइट, B4 वो ले लिया। फैक्ट्री स्टार्ट डेट 2024, ठीक है, 2024 से चालू होगा। अभी यहाँ पे देखो, अभी हमारा हमने क्या डिफाइन किया, मेरे साल में सिर्फ 4 छुट्टियां है, ठीक है। वो तो हो गई, हॉलीडे कैलेंडर आप असाइन कर रहे, आपने 4 किया, वैसे आप 12 डिफरेंट क्रिएट करके असाइन कर सकते, 12-15 जितनी भी छुट्टियां उतना आप उस हॉलीडे कैलेंडर पे असाइन करोगे। वो हॉलीडे कैलेंडर इस फैक्ट्री कैलेंडर आईडी को असाइन करोगे, और यहाँ पे आप डिफाइन करोगे आपका वर्किंग डेज कौन सा है, ठीक है। देखो आप पब्लिक हॉलीडे पे काम करोगे क्या, नहीं करोगे, इसलिए यहाँ पे ब्लैंक रखा है, ठीक है। और आपको सैटरडे संडे छुट्टी है, हाँ, तो आपका वर्किंग क्या है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। अभी मान लो यह ऋषि का हरियाणा वाला प्लांट है, तो वहाँ पे सिनारियो कैसा रहेगा, हरियाणा को फ्राइडे को छुट्टी है, सैटरडे को छुट्टी है, संडे सॉरी सैटरडे संडे वर्किंग है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे वर्किंग है, फ्राइडे को छुट्टी रहेगी और पब्लिक हॉलीडे को छुट्टी रहेगी, हरियाणा वाला प्लांट, राइट ऋषि, ऋषि बराबर है आप बोल रहा हो, हेलो। Yes, yes. तो ये हो गया हरियाणा का प्लांट, अगर होगा तो उसको ये रहेगा, फ्राइडे को बंद रहेगा, और जिस दिन हमने पब्लिक हॉलीडे मेंशन किया है उस दिन को हरियाणा का प्लांट बंद रहेगा, क्लियर। अगर ये दिल्ली का प्लांट है तो दिल्ली वाला प्लांट बोलेगा सैटरडे संडे एंड पब्लिक हॉलीडे इज हॉलीडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे हम वर्किंग करेंगे, ठीक है। अगर ये अरेबियन कंट्री का अगर ये कैलेंडर रहेगा तो वो बोलेगा भैया ऐसा सिनेरियो हमारे पास है, फ्राइडे सैटरडे इज हॉलीडे, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे हमारा वर्किंग है, फ्राइडे सैटरडे और पब्लिक हॉलीडे को हमारी छुट्टी रहेगी। दिस इज फॉर अरब कंट्री एग्जांपल, ठीक है। अभी कोई प्लांट ऐसा होगा जिसका वेडनेसडे को वो वीकली ऑफ है, तो उनका सिनेरियो ऐसा रहेगा, वीकली ऑफ वेडनेसडे को, देखो पुणे में MIDC में चले जाओगे आप पुणे के, तो थर्सडे को छुट्टी रहती है, ओके, MIDC में थर्सडे को हॉलीडे रहे, पावर कट ऑफ रहता है उस दिन, तो फ्राइडे सैटरडे संडे वर्किंग करते हैं वो, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तक वर्किंग करते हैं, सिर्फ थर्सडे को छुट्टी रहती है उनको, ठीक है, और पब्लिक हॉलीडे के दिन। और फिर हम क्या करेंगे, इसको करेंगे सेव। समझ में आ रहा है गाइस, हमने क्या किया, पहले हमने सबसे पहले हॉलीडेज डिफाइन किए, कौन कौन से दिन को छुट्टी है, फ्लोटिंग और फिक्स वो बनाया, फिर हमने एक हॉलीडे कैलेंडर बनाया, तो उसमें जितने भी छुट्टी हमने डिफाइन की सबको 10-12 जो भी छुट्टी होगी उसको एक साथ एक उसका हॉलीडे कैलेंडर बनाएंगे, और उसके बाद हम फैक्ट्री कैलेंडर क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हम वो हॉलीडे कैलेंडर सेंडर करेंगे जिसके अंदर हॉलीडेज है, एंड फिर हम वीकडेज डिफाइन करेंगे, हमारा वर्किंग कब कब है, कौन से दिन वीकली ऑफ है, वो वीकली ऑफ यहाँ पे डिफाइन करेंगे, एंड वी विल सेव इट, क्लियर। Yes.
एवरीबडी इज क्लियर? एनी क्वेश्चन? क्लियर। ओके, सिंपल है। अभी देखो ये जो B4 करके मैंने कैलेंडर किया है, मुझे वो प्लांट को असाइन करना है। किसको? प्लांट। मैंने बोला ना आपको ये प्लांट को असाइन होगा। तो अब अभी ट्राई टू रिकॉल /OSPRO। हमने जब अपना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का ये चैप्टर देखा था सबसे पहले, तो उसमें SFE रेफरेंस IMG एंटरप्राइज स्ट्रक्चर याद आ रहा है आपको? डेफिनेशन, उसके अंदर हमने कहते लॉजिस्टिक जनरल, वहां पे डिफाइन चेक एंड प्लांट याद आ रहा है आपको? ये प्लांट, यस। तो इसमें कॉपी चेक प्लांट जो है, डिफाइन प्लांट सॉरी, तो यहाँ पर याद आ रहा है आपको? अगर आप देखोगे ये 1000 को लेकर हमने कुछ कॉपी करके प्लांट बनाया था कुछ, तो मुझे याद नहीं आ रहा है। 4 सीरीज का कुछ तो प्लांट था यार, किसको याद आ रहा है नंबर प्लांट का? मैंने पोजीशन पहले एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेते मैं एक नया प्लांट क्रिएट करता हूँ, ठीक है? ये 1000 कॉपी कर रहा हूँ इसको मैं, और यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ नंबर कुछ डाल रहा हूँ 3445, ये मेरा फैक्ट्री डाल रहा हूँ मैं। कंपनी का नाम है B14 IND लिमिटेड, ठीक है? मुझसे नाम दे रहा है इसको, इसका नाम है B14 सपोज, ठीक है? और मान लो कि अभी ये जर्मन वगैरह सब छोड़ दो, ये सब नहीं चेंज होगा। और यहाँ पर फैक्ट्री कैलेंडर आईडी डालना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे डालेंगे B4 वाला फैक्ट्री कैलेंडर, ठीक है? समझ में आ रहा है टीम? हेलो? यस सर। Yes. तो यहाँ पर असाइन किया है, तो अभी यहाँ पे प्लांट को असाइन कर दिया, तो इस प्लांट को सिर्फ यही रूल रहेगा हॉलिडे का 2024 के लिए, ठीक है? तो दिस इज ऑल अबाउट योर फैक्ट्री कैलेंडर. So you might get a question on interview, what is factory calendar, how to create a factory calendar. सिंपल 3 स्टेप है. फर्स्ट पहले हॉलीडे डिफाइन करो, हॉलीडे क्रिएट करो, फ्लोटिंग वाला या फिक्स डेट वाला. देन एक हॉलीडे कैलेंडर क्रिएट करो, उसमें जितने भी हॉलीडेज बनाए वो सब असाइन कर दो. एंड थर्ड इज क्रिएट अ फैक्ट्री कैलेंडर, इसमें जो हॉलीडे कैलेंडर किया है उसको असाइन करो. एंड आपका वीकली ऑफ कौन सा है उसको एक्सक्लूड करके आपका वीक डेज वर्किंग डेज डिफाइन कर दो एंड सेव. सिंपल. एंड देन उसको आपके प्लान के साथ असाइन करना है आपको, ठीक है? ओके। ओके. सो इसका फ्रीक्वेंसी क्या रहता है? ईयरली? देखो, हाँ ईयरली रहते हैं मोस्टली. कुछ कंपनी में क्या आता है वो 3-3, 4-4, 5-5 साल का कैलेंडर एक ही साथ कर रहे थे. रीजन इज व्हाट? ओके। बिकॉज क्योंकि क्या होता है देखो, उनका जो प्लानिंग होता है, प्रोक्यूरमेंट होता है, प्लानिंग होता है. तो प्लानिंग में क्या होता है, वो कुछ कुछ निश मटेरियल रहता है. निश मटेरियल यानी क्या? सपोज यू आर प्रोक्यूरिंग सम मटेरियल फ्रॉम ओवरसीज, ठीक है? तो वहां पे क्या होता है, अगर आपने डिमांड डाल दिया तो आपको डिमांड है ना वो अगले 1 साल तक डालनी पड़ती है, तब जाके वो 6-6 महीने का उसका लीड टाइम रहता है प्रोक्यूरमेंट का. तो उसके हिसाब से आपको प्रोक्यूरमेंट के हिसाब से आपको पूरे 6 महीने में, पूरे अगले 6 महीने में कितने बार कब छुट्टी है, कब कब छुट्टी नहीं है, ये सब आपके पास प्लानिंग होना चाहिए अच्छे से, ठीक है? अगर वो प्लान नहीं है तो फिर फंस सकता है. तो इसलिए क्या करते हैं, पूरे 2-2, 3-3 महीने का, सॉरी 2-2, 3-3 साल का कैलेंडर एक साथ ही क्रिएट करते हैं. अभी 2024 का करेंगे तो 24 से लेके 28 तक क्रिएट करके रखेंगे. तो उस 4 साल का हॉलीडे सब डिफाइन करके रखेंगे. अगर उसमें बाद में जाके कुछ सडनली हॉलीडेज आ जाती है, मान लो कि इलेक्शन आ गया, अभी इलेक्शन किसको मालूम है कौन सी तारीख के होगा, राइट? मालूम नहीं है ना. तो फिर बाद में जाके उसको एडिट करेंगे एज ऑन व्हेन रिक्वायर्ड, ठीक है? अभी मारो महाराष्ट्र में इलेक्शन चल रहा है, तो वो आपका प्लांट है पूरे रीजन में, तो पुणे का ये कब आने वाला है, उस टेरिटरी के अंदर हॉलीडे, आई मीन इलेक्शन डे कब आने वाला है, मान लो कि 10 मई को आ रहा है, तो 10 मई को उस दिन हफ्ते पहले HR को पता चलता है ना भाई 10 मई को हमारे रीजन में ये होने वाला है, इलेक्शन होने वाला है. सो वी आर नॉट अलाउड टू डू इट. तो हम उसको हाफ डे लीव वगैरह कुछ वो दे देंगे. या फिर सडनली कुछ क्राइसिस आ जाती है, कंपनी आपको उस दिन बंद रखनी पड़ती है, जैसे कोविड आ गया था, ठीक है? उस दिन छुट्टी रखनी पड़ी कुछ, तो वो सब डेटा आपको अपडेट करना पड़ता है इमीडिएटली. या फिर ये तो हो गया क्राइसिस वगैरह. कुछ कंपनी के अंदर क्या होता है, देयर इज लेस डिमांड, ठीक है? कंपनी के अंदर इस महीने में बहुत कम डिमांड है. ऑटोमोबाइल कंपनी में विच आई नो वेरी वेल कि दिसंबर मंथ में क्या होता है, लोग बहुत कम गाड़ियां परचेस करते हैं. पीपल अवॉइड टू टेक अ व्हीकल इन अ मंथ ऑफ दिसंबर मैन्युफैक्चरिंग की गाड़ी भी लेना नहीं चाहते, या फिर गाड़ी बनी है तो लोग जनवरी में ज्यादा परचेस करते हैं. तो ये क्या करते हैं, लोग दिसंबर में बहुत कम प्रोडक्शन रखते हैं. तो दिसंबर में लो प्रोडक्शन रहता है, उस वक्त क्या करते हैं, पूरा का पूरा मेंटेनेंस का काम है वही उसमें रखते हैं. लोगों को
वर्कर्स को पहले 10-12 दिन काम पे रखते बोला थे, बाकी के 10-15 दिन प्लांट शटडाउन के नाम पे छुट्टियां रहती है, पेड हॉलीडे रहते हैं, और उस दिन कंपनी सब मेंटेनेंस करवा के लेती है 10-15 दिन में। बड़े बड़े क्रेन से, मशीन से, असेंबली लाइन या फिर जो भी है सबका मेंटेनेंस उस वक्त करवा के लेते हैं। ओनली मेंटेनेंस पीपल वर्क ऑन दोस डेज। समझ में आ रहा है आपको? सो दिस इज द वे योर फैक्ट्री कैलेंडर इज अपडेटेड एज ऑन व्हेन रिक्वायर्ड एंड फ्रीक्वेंसी इज मोस्टली ईयरली। ओके स्वप्निल, क्लियर है आपको? यस यस। और एडिट के लिए क्या है टी कोड? SCAL सेम, उसी में जाके एडिट भी हो सकता है। SCAL। इसमें चले जाएंगे हम, यहाँ पे जाएंगे, एडिट में जाएंगे। अभी आपको कौन, सॉरी अभी बैक, आपको फैक्ट्री कैलेंडर एडिट करना है। एडिट में जाओ, ठीक है, सर्च करो कौन सा था हमारा, B4 सिलेक्ट करो, ठीक है, गो इनसाइड एंड चेंज, ठीक है। ओके या आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। Yes, यस। yeah, I have one question, sir. ये मेंटेन कौन करता है एंड देन ये वर्क कैसे करता है? सपोज मैं सप्लाई चेन में हूँ, प्रोक्योरमेंट में हूँ, ये फिर हम लोग बना रहे हैं एंड देन हाउ विल नो व्हाइल वी आर प्रोक्योरिंग द मटेरियल एंड परफेक्ट, ओके, वैजनाथ, गुड क्वेश्चन। सो अंडरस्टैंड, अभी हमने फैक्ट्री कैलेंडर बना दिया, ठीक है। अभी आपका 1 तारीख को छुट्टी है, बराबर है। फर्स्ट में हमने छुट्टी रखा है लेबर डे करके। नाउ ऑन डे 1 जब आप MRP रन करोगे, आपका MRP क्या होता है, वी टेक MRP रन ऑन एवरी मंथ एंड, या फिर 1 तारीख जो होती है महीने की, उसके मॉर्निंग में 12 बजे रात को करते हैं। तो जब हम 1 तारीख को MRP रन करेंगे, उस दिन ना आप रहोगे ना मैं रहूंगा ऑफिस के अंदर, छुट्टी तो है। तो कंपनी क्या करेगी, MRP क्या करेगा, उनको मालूम है कि 1 तारीख को छुट्टी हमें, ठीक है, 1 तारीख को छुट्टी है, तो उसके हिसाब से क्या होगा, यहाँ पे 1 तारीख को छुट्टी है तो 2 तारीख से लेके आपका प्लानिंग चलोगा। तो फर्स्ट प्रोडक्शन का आपका प्रोक्योरमेंट का डेट या फिर प्रोडक्शन ऑर्डर का स्टार्ट डेट 2 तारीख से आएगा, 1 तारीख को नहीं आएगा, बिकॉज 1 तारीख को हॉलीडे। और कितने बचे हुए दिन है उसके हिसाब से पूरा प्लानिंग किया जाएगा। अगर मान लो 18 तारीख को 17 तारीख को भी छुट्टी है आपको, तो 17 का हॉलीडे कंसिडर करके आगे का MRP का आपका जो प्रोक्योरमेंट का है, प्रोक्योरमेंट प्रपोजल है, PR बनेगी या फिर PO बनेगी, उसके कोई डेट में फर्स्ट में नहीं रहेगा, ठीक है। या फिर आपका रिसिप्ट डेट होगा, तो उसको भी अगर वेंडर बोल रहा है मैं आपको 10 तारीख 1 मई को मटेरियल भेजूंगा, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो बोलेगा फर्स्ट में इज अ हॉलीडे, तो उसको पॉपअप जाएगा, ठीक है। अगर आप प्रोडक्शन ऑर्डर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो सैटरडे संडे को, ठीक है, तो आपको बताएगा बॉस संडे इज योर हॉलीडे, ओके, डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस, तो ही अलाउड करेगा मैन्युअली, सिस्टम में तो क्रिएट ही नहीं करेगा। तो ये समझ में आ गया फर्स्ट एप्लीकेशन? यस, ओके। इसके बाद क्या होता है, मान लो कि कोई मेंटेनेंस का बंदा है, तो प्लांट मेंटेनेंस ऑर्डर जब आती है, जब वो क्रिएट किया जाता है, तो मोस्टली सैटरडे संडे को प्लान किया जाता है। शेड्यूल मेंटेनेंस जो होता है, हम बोलते हैं ना प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल है, तो उस दिन होगा वो, जिस दिन हॉलीडे उस दिन, ठीक है। रिसिप्ट अगर आपको करने वाले हैं तो उसका रिसिप्ट का डेट एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप प्रोडक्शन कर रहे तो उस दिन वो प्रोडक्शन क्या डेट, सैटरडे संडे वर्किंग नहीं है, उस दिन वो प्रोडक्शन ऑर्डर सिस्टम थ्रू अगर क्रिएट हो रही है, MRP के थ्रू क्रिएट हो रही है प्रोडक्शन ऑर्डर, तो वो उस डेट को एक्सक्लूड करके आगे के डेट को चली जाएगी। अगर आपको मान लो आपका प्रोडक्शन का मैन्युफैक्चरिंग का टाइम है 2 दिन का, और आपका ऑर्डर स्टार्ट होता है फ्राइडे को, तो ऑर्डर कंप्लीट होने का दिन सैटरडे नहीं रहेगा, इट विल बी ऑन योर मंडे, क्योंकि सैटरडे संडे हॉलीडे है। तो सिस्टम क्या करेगी, आपका ऑर्डर का स्टार्ट डेट फ्राइडे है, लेकिन ऑर्डर का कंप्लीशन डेट मंडे रहेगा, सैटरडे संडे इज बीइंग हॉलीडे, 2 दिन आपका। अगर आपका ऑर्डर वही वेडनेसडे को चालू होता है, तो वो थर्सडे को खत्म हो जाएगा सिस्टम में उसका डेट, ठीक है, ऑर्डर स्टार्ट डेट एंड डेट, क्योंकि 2 दिन लगते हैं। लेकिन अगर वही ऑर्डर आपका फ्राइडे को स्टार्ट हो रहा है और सैटरडे संडे हॉलीडे, तो वो एंड डेट रहेगा मंडे वाला। समझ गए बैजनाथ? व्हाट इज Yes. ओके। Got it. और ये क्रिएट कौन करता है, एज ए PP कंसल्टेंट यू हैव टू क्रिएट। अगर आपके क्लाइंट कंपनी जो क्लाइंट है यार कंपनी वहां पे बोल रहे नहीं नहीं हमारा HR का बंदा करेगा, सो हायर एंड रिटायर जो आपका मॉड्यूल है, HR यानी हायर एंड रिटायर, उसको हम ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं, बट दैट इज कॉल्ड एज हायर टू रिटायर साइकिल, ओके, इन SAP, ओके। तो वो बंदा क्रिएट करेगा। अदरवाइज आपका प्लांट मेंटेनेंस का पर्सन है, वो भी क्रिएट कर सकता है, PM मॉड्यूल, SAP PM, ओके। ये तीनों मॉडल के जो कंसल्टेंट है, तीनों में से कोई भी एक बंदा ये फैक्ट्री कैलेंडर का SCL का T कोड यूज करके कॉन्फ़िगर कर सकता है, ओके। Okay, thank you. Yeah, okay. Any other question, guys, on this part? With this note, we'll stop over here, guys, okay? Sir, then I just wanted to know that मतलब इस पे टिकट्स कैसे आ सकते हैं? Not only this part, maybe on BOM or maybe on
material. अच्छा, एक मिनट, लेट मी स्टॉप दिस। ये अभी आपका ये हो गया, राइट?